علاقائی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اینٹی انکروچمنٹ انچارج لطیف آباد رشیدہ بانو کی جانب سے شاہ لطیف ٹاؤن کے اہلکار کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اینٹی انکروچمنٹ انچارج لطیف آباد رشیدہ بانو کی جانب سے شاہ لطیف ٹاؤن کے ملازم غلام فرید پر ایف آئی آر درج کروانے کے خلاف اسٹاف یونین شاہ لطیف ٹاؤن کے ملازمین نے شاہ لطیف ٹاؤن آفس لطیف آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ غلام فرید پر ایف آئی آر جھوٹ پر مبنی ہے، فی الفور اس کو ختم کیا جائے۔ ہم اسٹاف یونین کے پلیٹ فارم سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارا ملازمین ہے شاہ لطیف ٹاؤن کا غلام فرید، جو کہ اپنی ڈیوٹی پہ سر انجام دے رہا تھا 8 نمبر مارکیٹ میں افسر بالا کے کہنے پر، جو اس کے خلاف میڈم رشیدہ بانو نے جعلی ایف آئی آر کٹائی۔ فرید جو ہے روٹین کے مطابق جو ہے اسٹاف کے ساتھ انچارج جو ہے اسد زیدی کے ساتھ جو ہے 8 نمبر مارکیٹ جو ہے اس میں وزٹ کے اوپر گئے تھے، جس پہ وہاں پر جو ہے فریدہ بانو بھی جو ہے ان کے خلاف جو ہے فرید خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کرائی ہے، اور ہمارے ملازمین کا یہی مطالبہ ہے کہ اور ٹاؤن چیئرمین شاہ لطیف آباد سے اسامہ حفیظ صاحب سے میونسپل کمشنر صاحب سے کہ ان کے خلاف جو ہے رشیدہ بانو کے خلاف کاؤنٹر ایف آئی آر کرائی جائے۔ جبکہ دوسری جانب اینٹی انکروچمنٹ انچارج رشیدہ بانو نے این ٹی این نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 8 نمبر کلاتھ مارکیٹ میں ہماری کارروائی جاری تھی۔ رمضان المبارک کے حوالے سے میئر صاحب کی ہدایت تھی، جس پر ہماری ورکنگ وہاں پر جاری تھی، اور ہمارا اسٹاف تقریباً وہاں صبح سے موجود تھا۔ میں خود موجود تھی، پوری ہم وزٹ کر رہے تھے، تو اچانک سے ایسا ہوا کہ تقریباً 2 بجے کے قریب فرید جو ہے وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ وہاں پہ 8 نمبر مارکیٹ میں پہنچا، اور جب میں یونین کے ساتھ میٹنگ کر کے میں وہاں سے باہر نکلی تو اس نے ہمارے سامنے آ کے کافی بدتمیزی کی اور میرے اسٹاف کو دھمکایا بھی نہیں کہا، اس لیے کہ اگر ہم وہاں ہم بھی شور کرتے اور اس کو جواب سوال کرتے تو وہاں پہ ایک ہنگامی صورتحال ہو جاتی۔ اس کے بعد میں نے ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں نے ساری صورتحال لکھی، اور اس میں میں نے یہ بھی کہا کہ اگر مارکیٹ میں کوئی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری فرید۔ احتجاجی ملازمین کے مطابق غلام فرید کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر واپس نہ لی گئی تو احتجاج کا دائرہ بڑھا دیا جائے گا۔ کیمرامین رضوان زئی کے ساتھ آصف زئی، این ٹی این نیوز، حیدرآباد۔ سی پی او ملتان کا جلال پور پیرواڑہ کا دورہ، تھانہ سٹی کی تزئین و آرائش اور مرمت ہونے والی بلڈنگ کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سی پی او ملتان ملک صادق علی ڈوگر کا کہنا تھا کہ عوامی خواہش پر تھانہ کو دوبارہ شہر میں شفٹ کیا جا رہا ہے، جلد تھانے کی بلڈنگ کا افتتاح کیا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں ملک محمد نواز کی اس رپورٹ میں۔ سی پی او ملتان ملک صادق علی ڈوگر جلال پور پیرواڑہ کا دورہ، تھانہ سٹی کی تعمیر و نو تزئین و آرائش ہونے والی بلڈنگ کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل میاں عبدالرؤوف، ایس ایچ او تھانہ سٹی وقار میو، ایس ایچ او تھانہ صدر فراز خان بھی موجود تھے۔ سی پی او ملتان نے تھانے کے کام کا جائزہ لیا، جائزے کے دوران مختلف ہدایات بھی دی۔ اس موقع پر سی پی او ملتان کا کہنا تھا کہ عوام کی خواہش پر تھانہ سٹی کو دوبارہ شہر میں منتقل کیا۔ انشاءاللہ ہماری فوج یہاں منتقلی کے بعد عوام کی جان و مال کی تحفظ کے لیے بہتر کردار ادا کرے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک محمد نواز، این ٹی این نیوز، جلال پور پیرواڑہ۔ ادھر خانیوال میں ریڑھی بانوں کا شہر بھر میں پرامن احتجاج، ڈی سی خانیوال سے 15 روز کے لیے شہر میں کاروبار کی اپیل کر دی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں خانیوال سے ہمارے نمائندے عدنان رسول۔ آج بالکل میں اس وقت موجود ہوں خانیوال ڈپٹی کمشنر کے آفس کے باہر، جہاں پر خانیوال کے ریڑھی بان ہیں وہ یہاں پر سراپا احتجاج بنے ہوئے، انہوں نے شہر بھر میں ریلی نکالی اور سنگلا والا چوک سے ریلی نکال کر ڈی سی آفس کے باہر پہنچے، یہاں پر شدید احتجاج کر رہے ہیں اور یہاں پر سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ مزید بات کریں گے، یہاں پر ریڑھی بان موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے کیا کہیں گے آپ، کیا مطالبات ہیں، احتجاج کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے احتجاج کرنے کی وجوہات یہ ہے، ڈی سی او خانیوال سے ہم نے یہ التجا کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بخصوص میرا یہ جو ہے نا احتجاج کارڈ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ دوسرے شہروں میں ہمیں ریلیف ملا ہے، ہم وہاں جو انہوں نے ہمیں سٹال دیا، ہمیں بے روزگار کیا جا رہا ہے، ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، پر ہمیں لہٰذا یہ جو 10 سے 15 دن ہیں عید کے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے جتی کپڑا جو ہم نے خریدنا ہے ہمیں یہ ٹائم دیا جائے، اور ہم ان کی جو بات ہرگز ماننے کو تیار ہیں۔ ہمیں جو یہ 12، 14، 15 دن جو بقایا بچے ہیں ہمیں وہاں روزگار کرنا دیا جائے۔ مریم نواز وزیر پنجاب سے میری بار بار یہ درخواست ہے کہ ہمیں بے روزگار نہ کیا جائے، اور ڈی سی او خانیوال سے بھی میری پرامن احتجاج یہی ہے کہ ہمیں وہاں جو 15 دن جو ہے نا ہمیں دیا جائے، جہاں انہوں نے ہمارے جو ماڈل بازار بنایا ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات ماننے کو تیار ہے، پر وہاں اتنی جلدی جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، اس طرح یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لہذا ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں یہ 15 دن دیے جائیں۔ 15 دن کے بعد
जैसे ये कहेंगे हम इनसे वही इनकी बात मानने को तैयार है और अपने स्टॉल वहां लगाने के लिए तैयार है। हमें ये 15 दिन जो है ईद का दिन है, हमने अपने बच्चों के लिए जूती कपड़ा खरीदना है। कारोबारी हालात बिल्कुल नहीं है और कारोबार से हम पीछे हुए हैं। हमारे से ये ज्यादती हरगिज न की जाए। जैसे कि मुल्तान गुजरावाला में इन्होंने रिलीफ दिया, हमें रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? दीगर शहरों में पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, लेकिन हमें भी रिलीफ दिया जाए। उनका कहना है कि 15 रोज के लिए हमें यहाँ पे शहर में कारोबार करने दिया जाए ताकि हम यहाँ पर अपना रोजगार कर सके और ईद मना सके। मजीद उनका यह कहना था कि हम मॉडल बाजार में जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं ताकि वहां पर अब जाकर हम अपना कारोबार करें। फिल फॉर इस वक्त कारोबार नहीं हो सकता। तो मजीद उनका कहना था कि हम मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबात को माना जाए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। टोबर टेक्सिंग में रमजान मुबारक के दौरान महंगाई आसमान को छूने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटी नाकाम दिखाई दे रही है। दुकानदारों और ताजिरों ने अशिया खुदनोश के मनमाने रेट मुकर्रर कर रखे हैं। मजीद इफ्तिखार सिद्धू की रिपोर्ट। टोबर टेक्सिंग में रमजान अल मुबारक के दौरान महंगाई अपने अरूज पर पहुंच गई है। प्राइस कंट्रोल कमेटी की नाकामी के बायस दुकानदारों और ताजरों ने शाय खुर्दोनोश के मनमाने नर्ख मुकर्रर कर रखे हैं। शहर में बड़ा गोश्त 1000 से 1200 रुपए जबकि छोटा गोश्त 22 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए किलो तक जा पहुंचा है जबकि आलू, प्याज, मटर, अदरक समेत दीगर सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि हर साल रमजान आते ही महंगाई का तूफान बर्पा हो जाता है और हुकूमत की जानब से किए दावे दरे के दरे रह जाते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। गवर्नमेंट से अपील है कोई रिलीफ दे आवाम को। गरीब हम मजदूर है, हम घर जो कमाते हैं घर का खर्चा हो जाता है। चाहे सब्जी है, चाहे फल है, चाहे फ्रूट है, हर चीज़ की कीमत जो है वो लोगों ने खुद बढ़ाई हुई है और हर शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन वो अमली तौर पर काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से आवाम परेशानी का शिकार है। दूसरी जानब इंतजामिया की प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ छोटे दुकानदारों और स्टॉल होल्डर के खिलाफ कार्रवाइयां करती नजर आती हैं, जबकि बड़े मगरमच्छों और होलसेलर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सियासी और समाजी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज, टोबर टेक्सिंग। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तहसील सतहों पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कबीरवाला से, हैदर शाह से। जी हैदर, आगाह कीजिएगा। जी, कबीरवाला में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कबीरवाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक दिन भर बहुत सी ऐसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो प्राइस कंट्रोल के लिए मुतहर्रिक हैं। मैं इस वक्त कबीरवाला चौक टाउन हॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो जुर्माने कर रहे हैं खरीदारी करने के बाद। आए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, आप मजिस्ट्रेट के एज ए मजिस्ट्रेट जुर्माने कर रहे हैं, क्या ये खरीदारी होने के बाद होता है? जी, खरीदारी पहले इसकी खरीदारी करते हैं, हम अपने स्टाफ को भेजते हैं, वो खरीदारी करके जाते हैं और उसके बाद अगर उनका रेट ठीक है तो हम उनको वापस कर देते हैं। अगर ओवर चार्जिंग है तो उस पे फाइन करते हैं। अजी, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब का कहना है कि हम सबसे पहले खरीदारी करते हैं और कबीरवाला को इस चीज से पाक करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसी निजकारी के खिलाफ BHU और RSC स्टाफ सरापा एहतजाज हैं। वकला और दीगर शख्सियात ने भी रैली में शिरकत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर विंस। जी बिल्कुल, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से पैरामेडिकल स्टाफ जो है सरापा एहतजाज है, जबकि इसके साथ जो है जस्ट एक बार जो है वो उसके सदर भी मौजूद है और दीगर तमाम तर स्टाफ भी मौजूद है। आइए जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि आप पैरामेडिकल स्टाफ जो है सरापा एहतजाज, इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरी इसमें हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील है कि जिस तरह ये पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर और फीमेल हजरात DC ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दे के बैठे हैं, तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये नजकारी वाला सिस्टम अभी ख़त्म कर दें और बल्कि इनकी नजकारी करने की बजाय और इसमें असामियाँ पैदा करें और उसमें मज़ीद डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर साहबान और पैरामेडिकल स्टाफ रखें ताकि इंसानियत की बेहतर से बेहतर खिदमत हो सके। और इस निजकारी वाले सिस्टम को बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, तो सेहत के बहुत बड़े मसाइल हैं। अगर हुकूमत ये निजकारी करती है तो सेहत के बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और दुखी इंसानियत और गरीब इंसान अब जो कि पहले ही दवाई लेने से कासिर है, वो बिल्कुल ही उसकी सेहत वाला मामला क्लोज हो जाए।
जी बिल्कुल, पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ साथ वोकल ला भी जो है सरापा एहतजाज है कि हुकूमत को चाहिए कि अपने फैसले को वापस ले। इस वक्त हमारे साथ पैरा मेडिकल स्टाफ के जो है दीगर मेंबरान भी मौजूद है, जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? जी हम कहेंगे कि हमारे 12वें मंथ से उन्होंने एक्सटेंशन खत्म कर दी, हमें दोबारा बहाल किया जाए, और हम किसी के अप्लाई के भी काबिल नहीं है, और हम जो है ना 16,000 तनख्वाह पे गुजारा कर रहे थे। तो हमारी अपील हमें जी बिल्कुल, हुकूमत का फैसला जो है निजकारी का, उसके खिलाफ पैरा मेडिकल स्टाफ जो है वो सरापा एहतजाज। इस वक्त हमारे साथ दीगर जो है मेंबरान वो भी मौजूद है। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? जी हम ये मरियम, हमारा मुतालबा मरियम निवाज साहबा से है कि हमारी माँ है तो माँ किधर है? माँ के होते हुए बेटियां रोडों पे क्यों है? हमारा क्या कसूर है? हमारे जो कीमती लम्हे थे हमने BHU को दिए, अब हम किधर जाएंगे? जब सहूलतें आई तो हमें रोड पे लाके खड़ा कर। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है निजकारी का मामला जो है वो सर पकड़ गया है, जबकि पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ साथ जो है वोकल ला बिरादरी भी सरापा एहतजाज है। जबकि हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, ताकि जो है तमाम जो है अफराद जो है वो बेरोजगारी से बच सके। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के तालीम दोस्त विजन के तहत होनहार स्टूडेंट्स में लैपटॉप्स तकसीम करने की तकरीब मुनाकिद की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, CO एजुकेशन समेत दीगर ने शिरकत की है। मजीद देखते हैं मियां मोहम्मद अजमल शहजाद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने स्टीम मुकाबला जात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले 21 स्टूडेंट में लैपटॉप तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का कहना था कि स्टूडेंट ने पंजाब की सतह पर स्टीम के मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल की थी। हुकूमत पंजाब का ये इकदाम मियारी तालीम के उज़्म को जागर करता है। तमाम बच्चों की सलाहियतें काबिल दीद और हौसला अफजा हैं। डिप्टी कमिश्नर ने स्टूडेंट की कारकर्दगी और उज़्म को सराहा, मजीद मेहनत करने की हदायत की। आने वाले वक्त में आपने ही मुल्क की बागडोर संभालनी है, अपने टैलेंट को मजीद निखारें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पंजाब के हर बच्चे को मियारी तालीम की फराहमी के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब के तालीमी मनसूबे काबिल दीद हैं, जिनको बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा जा रहा है। तकरीब में शरीक स्टूडेंट, वालिदैन और उस्तादा ने हुकूमत पंजाब के तालीम दोस्त इक़दामात को सराहा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। फैसलाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए महंगाई के हवाले से तो फैसलाबाद में भी महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है, और जो रमजान मुबारक का महीना शुरू होते ही जो मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया हैं उनकी जो कीमतें हैं उनकी कीमतों को पर लग जाती हैं और कीमतें आसमान से बातें करने लग जाती हैं। बिलखुसूस बात की जाए मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं जिनमें चीनी है, चावल है, बेसन है या इस तरह की बाकी दीगर चीज़ें हैं, तो उन सब की जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। और आम शहरियों का इस हवाले से कहना है कि जो अशिया ज़रूरिया हैं उनकी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से एक तो रमजान मुबारक का महीना जो है वो गुजारना मुश्किल हो रहा है, और ऊपर से जो मतवस्त और लोअर मिडिल क्लास तबका है उनके लिए आम तौर पर जो अशिया ज़रूरिया हैं उनकी खरीद जो है वो काफ़ी मुश्किल हो चुकी है और घर का जो निज़ाम चलाना है वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से आम शहरियों का ये मुतालबा हुकूमत वक्त से है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो अशिया ज़रूरिया हैं उनकी कीमतों को, उनकी बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए और जो इनकी कीमतें उनको कम किया जाए। जबकि दूसरी जानब जो सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं उनमें भी जो मुख्तलिफ कीमतें उनमें ज्यादा जो रिलीफ है वो जो आवाम है उनको नहीं दिया जा रहा। ज्यादा से कम 5 रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए तक रिलीफ जो है वो आवाम को दिया जा रहा है। और आवाम का इस हवाले से कहना है कि इतना कम रिलीफ जो है इससे जो निज़ाम चलाना घर का है वो बहुत मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि ज्यादा रिलीफ दिया जाए और जो आम किराना की दुकानें हैं या बाकी दीगर मकामात हैं जहाँ पर अशिया ज़रूरिया अवेलेबल होती हैं तो वहां पर जाकर जो मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए, जिनमें घी है, दालें हैं, चीनी है, मैदा है, बेसन है और इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं जिनकी रमजान मुबारक के महीने में इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। और इस हवाले से जो आम आवाम है उनका ये मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि इन चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि जो मतवस्त और लोअर मिडिल क्लास तबका है वो अपने घर का गुजर बसर जो है वो आसानी के साथ कर सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर रुझान थाने की हदूद में इंडस हाईवे पर कायम टूल प्लाजा पर 8 मुसल्लह डाकुओं ने धावा बोल दिया। डाकुओं ने गन पॉइंट पर हमले को यरगमाल बनाकर 5 लाख रुपए लूट लिए हैं। मजीद बता रहे हैं रुझान से हमारे नुमाइंदे सैयद तैमूर काज़मी।
थाना रुझान की हदूद इंडस हाईवे पर कायम टूलू प्लाजा पर 8 मुसल्लह डाकुओं का धावा। डाकुओं ने टूल प्लाजा अमला को यरगमाल बनाकर 5 लाख रुपए लूट लिए। जिमनी जीप पर आकर लूट मार करते हुए और टूल प्लाजा अमला पर तशद्दुद करते हुए डाकुओं को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। वाक़े के बाद पुलिस टीम SHO रुझान इसाक जान की सरबराही में मौके पर पहुंची और डाकुओं का पीछा किया। ताहम डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। रुझान की आवाम को गुज़श्ता कई सालों से दो तरफा डाकू राज का सामना है। एक तरफ कच्चे के डाकू 2 इजला के ताज़ा सर बने हुए हैं तो दूसरी तरफ फरारी दुखी पहाड़ी इलाकों से निकलकर रुझान के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते हैं। रुझान में अमन कायम रखने के लिए कच्चे और पक्के के डाकू के खिलाफ ठोस प्लान के साथ ऑपरेशन की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ सैयद तैमूर कालमी, NTN न्यूज़ रुझान। और अब खबर यह है कि खुद साख्ता अगवा बराए तावान का नौजवान थाना खानगढ़ पुलिस ने मुल्तान से बरामद कर लिया। नौजवान वालिदैन से तावान के लिए खुद कॉल्स करवाने में मुलव्वस निकला। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद सज्जाद असलम। मुजफ्फरगढ़ के नवाही थाना खानगढ़ की हदूद बस्ती लांग के रिहायशी रब नवाज मोहाना ने थाना खानगढ़ पुलिस को दरख्वास्त पेश की कि उसका जवां साला बेटा 20 दिन से घर से गायब है और उनको अब चंद दिन से कॉल्स आ रही हैं कि 1,50,000 रुपए देकर नौजवान को वापस ले जाएं वरना नौजवान मुख्तार हुसैन को मार दिया जाएगा। रहीम मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक SDPO सदर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। चंद दिन पहले रब नवाज मोहाना नामी आदमी ने थाना खानगढ़ के अंदर एक दरख्वास्त दी कि मेरे बेटे मुख्तार को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और उसके लिए तावान का मुतालबा कर रहे हैं। ये दरख्वास्त मसूल होते ही DPO जनाब डॉक्टर रिजवान अहमद खान साहब ने फौरी तौर पर स्पेशल टीम तश्कील दी। मेरी सुपरविजन में SHO थाना खानगढ़ ज़रीफ़ खान और टीम, हमने फौरी तौर पे ऊपर एप्लीकेंट की फ़ाइनेंशियल पोजीशन भी चेक की और जो बच्चा अगवा हुआ उसकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन भी चेक की। दोनों मज़दूर पेशा लोग थे। चीज़ें कुछ हमें डाउटफुल हुई, हमने फौरी तौर पे टेक्निकल असिस्टेंस हासिल की। जो तावान के लिए कॉल आ रही थी वो मगवी के अपने ही नंबर से कॉल आ रही थी, लेकिन उसका मोबाइल IMEI नंबर उसके अपने नंबर से डिफरेंट था और कॉल करने के बाद उसका नंबर बंद हो गया। हमने फौरी तौर के ऊपर उस IMEI को ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद जो मोबाइल सिम उसके अंदर इस्तेमाल हो रही थी उसकी हमने ID ली। ID लेने के बाद हम फौरी तौर पे रेड किया। मुल्तान के अंदर जाके वहाँ पे हमने मौके पर जब पहुँचे तो मगवी वहाँ पर हमें उस मोबाइल समेत मगवी हमने बरामद कर ली। DSP पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी का अचानक दौरा। मरीजों को इलाज और मौलजी की सहूलियात का जायजा लेने के लिए खातून डिप्टी कमिश्नर सरगर्म हैं। मजीद जानते हैं राव रमजान एजाज की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में तैनात खातून डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मसाइल हल करने के लिए मुतहर्रिक हो गईं। डिप्टी कमिश्नर ने रात के औकात में अस्पताल के इमरजेंसी मुख्तलिफ वार्ड्स और दीगर शोबाजात का मुआयना किया और मरीजों से दस्तयाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। DHQ हॉस्पिटल हमने विजिट किया। हमारे पास यहाँ पे पेशेंट्स का लोड काफी है और खासतौर पे आपने इफ्तारी के टाइम के बाद देखा तो इस वक्त 100 के करीब पेशेंट हमारे आ चुके हुए यहाँ पर। इस टाइम पे रशी आवर्स में जरूरत है कि इन रश को स्कैटर करके उनको प्रॉपर सीटिंग प्लेस पर बिठाया भी जाए ताकि रश जो है वो थोड़ा सा स्कैटर भी हो जाए, डॉक्टर्स भी अपने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मौजूद अमले की हाजिरी चेक की और MSDHQ को मरीजों की शिकायत हल करने के अहकामात जारी किए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी के तहत जो हमारे पास मेडिसिन आ रही हैं हम उसके अंदर रह के ही पेशेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको मजीद बेहतर करें। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करना ज़िले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और किसी भी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा टीम के साथ राव रमजान एजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। आपको बताएं कि मियांवाली में ईद उल फितर करीब आते ही तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बाजारों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। मियांवाली से ईद की खरीदारी के हवाले से देखते हैं हफीजुल्लाह खान नियाजी की ये रिपोर्ट। जूजू ईद उल फितर करीब आ रही है, मियांवाली में ईद की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। जहां बाजार वीरानी का मंजर पेश कर रहे थे वहीं पर खरीदारों का रश बढ़ने लगा। ईद नजदीक आ गई है, बच्चों का रश थी गया। सारी खिलौना की दुकान है, माशाल्लाह सारा कारोबार इस टाइम अरूज थे। बच्चे मेरे को आए खलोते ने खिलौने गिनो इंशाल्लाह होर बच्चे आसन दूर नवे सन रैम वधवे सी ते रश थींदा वे सी बाजार दे विच औरतां दा जणियां दा रन्ना दा। आज मैं बाजार आया खरीदारी करन में बहुत सारे खिलौने गिदन
तो आज मैं एक बंदूक की दी। ईद की खरीदारी के लिए नौजवानों समेत बच्चों औरतों की कसीर तादाद मार्केटों में अमन ढाई। जूते, कपड़े और चूड़ियों की दुकानों पर रश बढ़ गया। जैसे ही ईद करीब आ रही है और बाज़ार में रौनकें बढ़ गई हैं, बाज़ार में रश है, लोग आ रहे हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी और मुख्तलिफ जो सामान है वो लोग ख़रीद रहे हैं। अभी जैसे ईद नज़दीक आ रही है, वालिदैन के अखराजात बढ़ रहे हैं, बच्चों की फरमाइशें हैं ज़ोर शोर से, कभी ये ले दो हम वो, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर ख़रीद सकें। तो आज भी मैं बाज़ार में आया हूँ, तो अब कुछ चीज़ें खरीदी हैं बच्चों के लिए, मैंने अभी कुछ और ख़रीदूँगा मैं। कोई जूते खरीद कर रहा है तो कोई कपड़े, कोई परफ्यूम ले रहा है तो कोई चूड़ियाँ। महंगाई के बावजूद मार्केटों में शहरी खरीदारी करते नजर आते हैं। कैमरामैन मजीद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान याजी, NTN न्यूज़ मियांवाली। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी जंग, मिलावट और जालसाज माफिया के खिलाफ मुतहरिक है। जंग पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई ने मासूम बच्चों को मुज़र सेहत जूसेस पीने से बचा लिया। जाली और गैर मयारी 1300 लीटर जाली और मुज़र सेहत जूस तल्फ कर दिया गया। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद असद हयात। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद की खसूसी हदायत पर रमज़ानुल मुबारक में पंजाब फूड अथॉरिटी जंग की कार्रवाइयाँ तेज़, मुल्ज़मान ममनुआ अज़ा से बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मियारी जूस बनाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। गैर मियारी व मुज़र सेहत जूस को मुख्तलिफ ब्रांड्स की पैकिंग में पैक किया जा रहा था। 21,060 पैकेट पर मुश्तमिल 1300 लीटर जैली व मुज़र सेहत जूस मौका पर ही तलफ कर दिया। मुख्तलिफ ब्रांड का 200 किलो पैकिंग मटीरियल भी मौका पर ही जब्त कर लिया। यूनिट सील प्रोडक्शन इसलाह तक बंद करके मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जंग उमर सरवर का कहना था, माह रमज़ानुल मुबारक में मिलावट व जालसाज माफिया को बच्चों व बड़ों की सेहत के साथ हरगिज़ नहीं खेलने दिया जाएगा। अवाम तक मियारी खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सैयद असदियात, NTN न्यूज़, जंग। उधर THQ अस्पताल मरी में स्टाफ की कमी के बायस दूर दराज आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। MSTHQ मरी ने मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का इंदिया दे दिया। मरी से रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अब्बासी। जी अदील, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं THQ अस्पताल मरी में। यहाँ पर स्टाफ की कमी के बहुत से मसाइल थे, जिस वजह से हम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं THQ MS मरी हमारे साथ हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं THQ हॉस्पिटल मरी का MS हूँ। मैं जो हमारे हॉस्पिटल में मसाइल थे पहले से, इसमें कुछ स्टाफ की कमी थी जिसका हुकाम बाला को भी पता है, और मल्टीपल टाइम हमने इसके लिए अपने हुकाम बाला को और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं उनको बताया गया है, और इंशाल्लाह उन्होंने भी हमारे साथ वादा किया हुआ कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह इस कमी को हम दूर करेंगे। इसके अलावा सर, यहाँ एक्सरे मशीन कुछ दिनों से ख़राब थी, जिसकी वजह से साइलिन को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके लिए क्या हुआ है? हाँ, पिछले दिनों में हमारी मशीन इस 2 हफ्ते में 5-6 मरतबा ख़राब हो गई है। वो इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ की वजह से, और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, किसी भी टाइम ख़राब हो सकती है। फिर उसके लिए एक प्रोसेस होता है, हम वर्क वालों को इन्फॉर्म करते हैं, उनको लेटर भी भेजते हैं और उनको इन्फॉर्म भी करते हैं। फिर जो उनके मुताल्लिक़ इंजीनियर्स है वो टीम भेजते हैं और उसको ठीक करते हैं। हम मल्टीपल टाइम ख़राब हो गई, ठीक हो गई, ये फिर ख़राब हो गई, फिर ठीक हो गई और की हुई है। और इनका कहना है कि हमारी भी कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो अस्पताल का स्टाफ है उसको कंप्लीट किया जाए। एक्सरे मशीन का भी इशू जो था वो भी इन्होंने बंदे हायर किए हुए हैं जो उसको रिपेयर करके दोबारा एक्टिव करेंगे। ऐदी रफ्ता की ताबनाकियों के शाहिद डाक बंगले ज़बूहाली का शिकार हो चुके हैं। बड़े सगीर पाको हिंद के तोलो अर्ज में बरतानवी हुकूमत और ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के दौरान ये डाक बंगले तामीर किए गए थे। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान आजिज। डाक बंगले बरतानवी हिंदुस्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बनने वाली एक खास किस्म की इमारत हैं जो कि बर्रे सगीर पाको हिंद में बरतानवी दौरे हुकूमत में तामीर की गयी। जदीद पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में आज भी बरतानवी तर्ज तामीर की जदीद अज़ेब इमारत मौजूद हैं जो कि अपनी अहद रफ्ता की ताबनाकियाँ और अजमत बयान कर रही हैं। बर्रे सगीर पाको हिंद में जब अंग्रेज दौरे हुकूमत में दुनिया का बेहतरीन नहरों का निज़ाम मुतारफ करवाया गया तो इन नहरों की देखभाल, मुसाफिरों के क़याम और मेहमानों की मेहमान नवाजी के साथ साथ आला अंग्रेज अफसरान
हिंदुस्तान के क़याम के लिए मुख्तसर फासले पर डाक बंगले तामीर किए गए, तीनों आराइश का मुतालबा करते नजर आते हैं। अंग्रेज दौरे हुकूमत में बर सगीर पाक हिंद में दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम कायम किया गया। नहरी निज़ाम के साथ साथ तमाम नहरों के ऊपर अंग्रेजों ने डाक बंगले तामीर किए, जिनका मकसद अंग्रेज अफसरान और मातहतान के लिए आराम का बंदोबस्त करना था। ऐद रफ्ता की ताबनाकियों की मिसाल ये डाक बंगले आज भी उसी तरह कायम दायम हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इन डाक बंगलों के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करे ताकि सयाहत को फरोग हासिल हो सके। कैमरामैन मलिक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, NTN न्यूज, फैसलाबाद। पेंसिल का जादू या जादूगर का कमाल। सादिकाबाद का आर्टिस्ट बेमिसाल पेंसिल हाथ में पकड़ता है तो शाहकार बना देता है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे अकरम खान से। जी, मेरे साथ मौजूद है एक आर्टिस्ट जो हाथ पेंसिल से जो है पेंटिंग बनाते हैं, तो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, बताएं हमें ये आप कब से बना रहे हैं और कैसे शौक हुआ? मेरा नाम विवेक चौहान है और 3 साल से मैं आर्ट कर रहा हूँ। मुझे स्टार्टिंग में जैसे एज एन हॉबी जैसे हम रफली आर्ट किया करते थे, तो वैसे ही मुझे शौक पैदा होना शुरू हुआ। अब मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। तो ये आपने फ़न कहाँ से सीखा? मैंने ये आर्ट सर लाहौर से सीखा है। नहीं, इसमें कोई आपका उस्ताद था या आपने खुद ही सीखा है? मेरे उस्ताद थे सर अहमद, उनसे मैंने आर्ट सीखा था। उसके अलावा मैंने अलहमरा से सीखा है, काफ़ी इंस्टीट्यूट से सीखा है, मतलब एक ही जगह पे बाउंड होके नहीं आर्ट किया। और हमारा जो यूट्यूब है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हम उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ले नहीं रहे होते, हम बस टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। यूट्यूब बहुत अच्छी प्लेस है हमारे काम सीखने के लिए। संग मेला एक कदीम रिवायत और हमारी सकाफत का हिस्सा है। संग मेलों में शामिल होने के लिए लोग मुख्तलिफ सकाफती रंगों में रंग कर शिरकत करते हैं। तफसीलात बता रहे हैं मंजूरुल हसन सयाल अपने इस रिपोर्ट में। संग मेला एक कदीम रवायत और हमारी सकाफत का हिस्सा है, जिसका आगाज 13 जनवरी सियालकोट से शुरू होता है और मुख्तलिफ जगहों पर पड़ाव डालते हुए दरबार हजरत सखी सरवर डेरा गाजी खान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है। ये काफिला शोर कोट बाबा शालदीन के मकाम पर एक दिन के लिए लगाया जाता है, जहाँ शहरी खूब एंजॉय करते हैं। एक रवायत के मुताबिक हजरत सखी सरवर की वफात के बाद 1174 में इनके मुरीदैन की जानिब से एक संगत का आगाज किया गया, जिसकी मुनासबत से इसे संग मेला कहा जाता है। संग मेले में बाबा, जिन्हें मकामी जबान में छड़िया कहा जाता है, वह बच्चों को लोरियां देते हैं और लोरियां देकर अकीदतमंदों से नजराना इकट्ठा करके दरबार हजरत सखी सरवर डेरा गाजी खान पहुंचते हैं। संग मेले लगाए जाने वाले झूलों से जहां बच्चे बड़े झूले झूल कर लुत्फ अंदोज होते हैं, वहीं मिठाई और दीगर स्टॉल से मुख्तलिफ अक़साम की अशिया खरीद कर मेले की यादें सजाई जाती हैं। कैमरा टीम के हमरा मंजूरुल हसन सयाल, NTN न्यूज।